Okay, friends. Good morning to all of you. Myself, Dr. Sandeep G. Prajapati, Assistant Professor, Faculty of Commerce, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. At our TY level, we are going to see the subject organizational behavior, which is one of the compulsory subject at your TY level. So let me begin our lecture. Before I just start, let me just discuss the one quote with you and then we go ahead. Progress is possible, no one can stop it, but obstacle is there, we have to face it. Said by the Amartya Sen. इसका मतलब क्या होता है कि भाई हर एक फील्ड के अंदर आपको सक्सेस होना है, then you have to put efforts because in each and everyone's life there are the various issues, problems, obstacles. Definitely it is going to come and you have to face it strongly. You have to come out from it strongly and you need to focus on attaining your goal. So this is the what this quote is trying to say. क्यों रखा है इसे, तो हम रिलेट करते हैं अभी कि भाई अभी हमारा गोल है कि भाई हमें टीवाई में अच्छी तरह से अच्छे परसेंटेज के साथ पास होना है. दिस इज द गोल विच इज द टारगेट विच वी वांट टू अटेन. बट ऑब्स्टेकल्स आर देयर कि भाई ऑब्स्टेकल्स क्या है कि भाई हमारे रेगुलर लेक्चर्स नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड वी आर सपोज टू सी दिस लेक्चर्स ऑनलाइन. सो ऑब्स्टेकल्स है, इश्यूज है, नेट का प्रॉब्लम होगा, आपके यहाँ पे मोबाइल का प्रॉब्लम होगा. सो देयर मे बी द वेरियस इश्यूज बट we have to face it, we have to be a little bit stronger and definitely we are going to attain our goal at the end of the day. Okay, so be strong and be positive. This is which I would like to say with the help of this quote. Yes friends, these are the reference book which we are going to use under the subject of organizational behavior. Like first is OB by Stephen Robbins, OB by K. Aswathappa, and Organizational Behavior by L.M. Prasad. These are the three books which we are going to see in our study. These are the content of unit number 1 which we are going to see one by one. Contents like first, definition and meaning of organizational behavior, scope of organizational behavior, importance of OB, nature of OB, contributing disciplines to the field of OB, OB framework, oblique OB model. So these are the points which we are going to observe under the title of unit number 1. Exam में कैसे आ सकता है? In the exam, you may found the questions of 15 marks. कि भाई 15 marks में पूछना है तो कैसे पूछ सकते हो? The 15 marks question may be like this. Define the term organizational behavior. List out and discuss the importance of OB. Even same way. Define the term organizational behavior. List out and discuss the nature of OB. In 7 to 8 marks, question may be like this. List out and discuss various contributing disciplines in the field of OB. So that is the 7 to 8 mark question. Same way even scope of OB can be asked in a short note, and this OB model or OB framework even it can be asked in a 15 marks question. 15 मार्क्स सॉरी 2.5 मार्क्स में क्वेश्चन 1 में पूछना है तो पूछ सकते हैं मीनिंग ऑफ ओबी, जहाँ पे आपको एक डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके लिए 2.5 मार्क्स हो सकते हैं. सेम वे इवन इट इज लाइक दिस कि भाई लिस्ट आउट करो, तो आपको बोलेंगे कि भाई लिस्ट आउट करो, तो 2.5 मार्क्स में बोल सकते हैं. तो इंपॉर्टेंस है, नेचर है, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आपको लिस्ट आउट करने को बोल सकते हैं. सेम वे वेरियस डिसिप्लिन्स, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको भी हम मीनिंग के रूप में पूछ सकते हैं 2.5 मार्क्स में, तो उसका हमें मीनिंग याद रखना पड़ेगा. एंड इवन ओबी मॉडल SOBC, तो एस का मतलब क्या होता है, बी ओ का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, लाइक दैट. तो उस तरीके से भी 2.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं. सो दिस इज यूनिट नंबर 1. ये भी मैं कंटेंट रखने वाला हूँ, वहां पे लिंक में जाके आप फाइल्स में जाके देख सकते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
So first of all, before we just study any subject, the first question which is come in our mind is why we need to study this subject. ये क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में आना चाहिए. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. उससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई बीइंग अ वन मैनेजमेंट स्टूडेंट यू ऑलवेज नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस व्हाई. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि भाई हमें ओबी क्यों पढ़ना चाहिए. अगर बंदे के पास ओबी का नॉलेज है तो उससे क्या होगा, हाउ दिस नॉलेज ऑफ ओबी विल बी हेल्पफुल टू अ मैनेजर एट द वर्क प्लेस. कि भाई ओबी का नॉलेज उसे कैसे हेल्पफुल होगा, ओबी हमें कैसे हेल्पफुल होगा. दैट इज द पॉइंट विच वी वुड लाइक टू learn under the title of why we need to learn the subject OB. But before we just start, let me just briefly explain or discuss what is behavior. Then after we will go in detail. चलो, behavior का मतलब क्या होता है? Any one of you? Behavior means behavior का मतलब क्या होता है? Any one of you? Simple words में, layman language. I am not asking for book definitions. अगर सिंपल वर्ड्स में आपको कोई बोले कि भाई बिहेवियर का मतलब क्या, तो आप कैसे बोलोगे, उसको आंसर कैसे करोगे? बिहेवियर क्या होता है? कोई कैसे बर्ताव करता है. यस, वेरी गुड. यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप बोल सकते हो. मेरे को समझ में आएगा तो मैं समझूंगा. ठीक है. यस प्लीज बोलिए. और कोई? बिहेवियर का मतलब क्या? बिजनेस में कैसे बिहेवियर करना चाहिए वो सब. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस. ओके, और कोई? बिहेवियर को अगर मुझे सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? बिहेवियर मीन्स व्हाट? रिएक्शन टुवर्ड्स सिचुएशन. यस, वेरी गुड. और कोई? बिहेवियर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो यस, ठीक है. चलो मैं बोल देता हूँ. बोलने को आपको अलाउ है बोलने को, अदरवाइज मेरे को क्या लगेगा मैं अकेला ही बोल रहा हूँ और अकेला ही सुन रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है वर्चुअल क्लास में. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जो भी आता है जैसा भी आता है एटलीस्ट बोलो तो मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं मैं बच्चों के साथ में हूँ. ठीक है. चलो, तो अगर लेमैन लैंग्वेज में और सिंपल सेंटेंस में अगर मुझे बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है देन आई विल बी एक्सप्लेन लाइक दिस. बिहेवियर मीन्स हाउ यू एक्ट एंड रिएक्ट. Behavior means how you act and react in a given situations. आप कोई भी situations के अंदर कैसे act और react करते हो वो क्या दिखाता है? आपका behavior दिखाता है. So in simple words we can say how you act and react. That represents your behavior. चलो, मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक बंदे का बिहेवियर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, एक ही बंदा है, बंदा एक ही है बट इन डिफरेंट सिचुएशंस उसका बिहेवियर सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग 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 होगा. वेरी गुड. चलो, yes, correct. Even a single person's behavior might be different as the situations are changing out. Once you just speak out, you can switch off your minds. ठीक है. तो जब आपको बोलना है उस टाइम पे ही आप माइक स्विच ऑन करना, फिर उसके बाद बंद कर देना. चलिए आगे जाते हैं. तो मैं ये बोल रहा था कि कोई एक बंदा है तो उसका बिहेवियर, सिचुएशन चेंज होगी, बंदे का बिहेवियर चेंज होगा. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट वी विल बी मोर क्लियर. कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन अ क्लासरूम, कि जब हम रेगुलर कॉलेज में होते हैं उस टाइम पे आप जब क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और एक टीचर आपके सामने आके लेक्चर्स ले रहा है, वन टीचर इज कमिंग एंड ही इज टेकिंग अ लेक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू. एट दैट टाइम व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर्स यू विल शो?
वहां पे आपका बिहेवियर कैसा होगा क्लासरूम के अंदर? बोलिए। Calm, understanding, sincere type. यस, वेरी गुड। डिसिप्लिन, यस करेक्ट, वेरी गुड। कि भाई क्लासरूम के अंदर आप अच्छी तरह से बैठोगे, जो भी कंसर्न टीचर्स है जो बोल रहा है उसको शांति से सुनोगे, उसको नोट डाउन करोगे, एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू लर्न द वेरियस एस्पेक्ट्स एट द इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम। कि भाई क्लासरूम के अंदर आप बैठ के अच्छे एक एक्सपर्ट बेस्ड स्टूडेंट्स का रोल नॉर्मली प्ले करते हो, तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में होता है। चल, नाउ सिचुएशन चेंज, यू गो बैक टू योर होम एंड नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ योर मॉम। अभी आप अपनी मम्मी के सामने हो, तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर सेम रहेगा? आपका बिहेवियर Changes. सेम रहेगा? आंसर इज no, नो। No, sir. मम्मी के सामने आप सिंसियरली नहीं बैठोगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, मम्मी क्या बोल रही है उसको शांति से नहीं सुनोगे। सो पॉइंट इज, आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एट दैट टाइम योर बिहेवियर इज चेंज। कि भाई आपका बिहेवियर चेंज हो गया, बिकॉज नाउ यू आर इन अ डिफरेंट सिचुएशंस। तो सिचुएशन चेंज होगी, आपका बिहेवियर चेंज होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और कंपनी के बीइंग अ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, वो अगर बॉस के सामने है उस टाइम पे उसका बिहेवियर, और अपने और when he is with his colleagues, उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा है? तो whether the question is whether at the both the time his behavior will be same, once again answer is no। कि जब वो बंदा अपने कलीग्स के साथ होगा तो एट दैट टाइम ही विल बी क्वाइट ओपन, वो अपने फ्रीली बात कर सकता है। बट जब बॉस के सामने होगा तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा होगा? अलग होगा। वहां पे वो चिल्लाएगा नहीं, अपनी इवन पर्सनल बातें अपने फ्रेंड्स के साथ करेगा, बट बॉस के साथ नहीं करेगा। क्लियर? तो बंदे का सिचुएशन चेंज होता जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाती है। इवन एक सिंपल एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में बोलो तो, कि फॉर एग्जांपल चलो एक रोड, आप रोड पे से जा रहे हो और 500 रुपीज की नोट वहां पे पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? एनी वन ऑफ यू, आप रोड पे से जा रहे हो और रोड पे 500 रुपीज की नोट है, तो आप क्या करोगे? उठा लेंगे सर। ले लेंगे सर, वेरी ले गुड। लेंगे नॉट। कल मुझे जीवन में आंसर मिला था कि भाई हम वो लेके पुलिस को दे देंगे। मैंने बोला मैं तो रख लूंगा। So you all are having this, हम भी रख you all have the same kind of behavior which I am also expressing in that particular day। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली वो नोट ले लेता। भाई मेरा बिहेवियर, मेरा एथिक्स बोलता है नहीं भाई ले लो, तुझे मिली है, भगवान ने दिया हुआ है, लाइक दैट। तो these are the सिंपल वर्ड्स में बोले तो बिहेवियर क्या दिखाता है कि भाई बंदा कोई सिचुएशंस के अंदर कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है। हाउ ही स्पीक, हाउ ही वॉक, हाउ ही डिस्कस, हाउ ही पुट हिज थिंकिंग, बिलीव्स, इमोशंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो वो क्या दिखाता है? वो बंदे का बिहेवियर दिखाता है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? बिहेवियर का मतलब यस और नो? yes sir, yes Yes, sir, वेरी गुड। चलो तो अभी आगे जाते हैं कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशंस तो पता है ना, वो आगे हम देखने वाले हैं कि भाई डिटेल में ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। बट यहाँ पे क्या पॉइंट है हमारा कि भाई हम कंपनी के अंदर लोगों के बिहेवियर को क्यों समझेंगे? क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। दिख रहा है ना पीपीटी? तो पीपीटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? no sir. नहीं? नहीं sir, तो इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ तो आपको पीपीटी नहीं दिख रही है? नोप सर, सिर्फ ये YOB दिख रहा है, वही दिख रही है पीपीटी। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, बट ये दिख रहा है ना YOB लिखा हुआ? हाँ वो दिख रहा है। ओके दिख रहा हाँ है sir, वो दिख रहा है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अभी आगे जाते हैं। तो अभी हमें समझना है कि भाई हम OB सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। चलिए, नाउ वी विल गो लिटिल बिट क्विकली।
चलो why we need to study the organizational behavior. तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है OB will help us in improving the productivity of our employees. तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन से प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट? एफआई में आप पढ़े होंगे प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी એટલે सारी Ability to सारी produce good total part. production divided by total population, वो productivity होता है. ઓહો તમે તો ઇકોનોમિક્સ લઈ આવ્યા બેન. વેરી ગુડ. ચલો પછી બીજું કોઈ પ્રોડક્ટિવિટી એટલે Ability to produce. ओके चलो यहाँ पे हमारा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो यही होता है. आपने जो बोला वो सही है. इन सिंपल वर्ड्स प्रोडक्टिविटी रिफर्स हाउ मच इनपुट इज गिवन and how much output he or she is receiving. That refers his or her productivity. तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ऐसा है कि अगर हमारे पास OB का नॉलेज होगा then we can able to improve the productivity of our employees. कि भाई हमारे एम्प्लॉयज की हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे. चलो तो उसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के एम्प्लॉयज होंगे. एक बंदा ऐसा है जो इफेक्टिव है, एक बंदा ऐसा है जो एफिशिएंट है ना. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं और उसके बाद एग्जांपल लेते हैं सो दैट विल बी मोर क्लियर. इफेक्टिव बंदा है उसका मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मींस ही इज डूइंग द थिंग्स राइट. मतलब ऐसा बंदा है कि उसको जो बोला गया है वो बंदा वही काम कर रहा है. रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो टारगेट मिला है, जो काम दिया हुआ है, जितने दिन में दिया हुआ है उतने दिन में वो बंदा वो काम कर रहा है. सो एज पर द कंपनी वो बंदा अपना काम कर रहा है. बट वो कैसा है? इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है. बट एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मीन्स पर्सन इज डूइंग द राइट थिंग्स ओनली. In other words, he is performing or functioning in the best possible manner with the least waste of time and efforts. चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से so we will be more clear. इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव बंदा है उसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल एट आवर कंपनी वी आर द कंपनी ऑफ मोबाइल फॉर एग्जांपल एंड वी हैव अ वन सेल्समैन. कि भाई एक हमारा यहाँ पे सेल्समैन है. तो कंपनी ने उसे टारगेट दिया है कि एक महीने के अंदर विद इन द 1 month यू आर सपोज टू सेल 300 मोबाइल्स. कि एक महीने के अंदर आपको 300 मोबाइल्स देने हैं. इनपुट क्या हुआ? तो कि भाई ह्यूमन आवर्स ऑफ 1 month. आउटपुट क्या आया? सेल्स ऑफ मोबाइल 300 मोबाइल विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो दिस इज द इनपुट ऑब्लिक आउटपुट. तो यहाँ पे क्या करेगा? इफेक्टिव बंदा है मतलब उसको जो टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट के बेसिस पे वो बंदा अपना जो सेल्स है वो कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसने 300 यूनिट सोल्ड कर दिए और उसने अपना टारगेट अचीव करके सब नोट डाउन करके डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट करवा दिए और कंपनी ने बोला कि हाँ भाई तूने टारगेट अटेंड कर दिए. बट वो बंदा कैसा है? इफेक्टिव है. बट एफिशिएंट बंदा है उसका मतलब क्या? अ पर्सन इज मोर एक्टिव. He is doing the work but in a best possible manner. कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देगा. तो एफिशिएंट बंदा होगा उसका मतलब क्या? ऐसा भी सेल्समैन हो सकता है कि जो 300 मोबाइल्स 15 दिन के अंदर बेच दे. क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे क्या होगा? बंदा एफिशिएंट बंदा है उसका मतलब क्या? He have the abilities and he will perform like that. कि भाई बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपना काम करेगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा 15 दिन के अंदर 300 मोबाइल सोल्ड कर दे और एक महीने के अंदर फॉर एग्जांपल डबल 600. कंपनी ने टारगेट दिया था 300 का, बस उसने सोल्ड कर दिया 600. तो वो बंदे को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंट बंदा है. कंपनी ने जो दिया था उससे ज्यादा वो काम कर रहा है. मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है? ज्यादा है. ह्यूमन आवर्स दोनों ने सेम लगाए बट आउटपुट किसका ज्यादा आया? एफिशिएंट बंदे का ज्यादा आया. सो हमें वर्क प्लेस पे क्या चाहिए? एट द वर्क प्लेस वी वांट टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी. अगर आपके पास ओबी का नॉलेज होगा तो आप लोगों को मोटिवेट एनकरेज कर पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई कौन सा बंदा इफेक्टिव है, कौन सा बंदा एफिशिएंट है और किससे हम कितना काम ले सकते हैं. दैट विल बी
known to you with the help of knowledge of organizational behavior. So that अगर efficiency increase होगी तो company का profit increase होगा, return on investment increase होगा, and even we can take more work per hour at the workplace. So ultimately company को more benefit होगा. Clear point first, productivity. समझ में आया एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलिए, तो इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, कि भाई वो बंदा इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, वो हमें ऑब्जर्व करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक अ डिसीजंस कि भाई किसको रखना है, किसको नहीं, कौन कितना काम कर रहा है, कौन किसको कंपनी को कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा है. तो ओबी का नॉलेज हमें वहां पे हेल्प करेगा. चलो आगे जाते हैं. दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि भाई ओबी विल हेल्प अस इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. सेकंड, OB will help us in enhancing the job satisfaction of our employees. तो job satisfaction क्या होता है? Satisfaction, job satisfaction means, job satisfaction એટલે job satisfaction क्या होता है? एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जॉब से. ओके, और कोई? वो जितना वर्क दे આપણે रहा है જે કામ કરે છે उसके એમાં सामने સેટિस्फेक्शन उसकी મળે सैलरी सर. भी मिल रही है. वन बाय वन बोलिए, शांति से, वन बाय वन. जॉब सेटिस्फेक्शन मींस एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, उसका मतलब क्या? डिससेटिस्फाई है, उसका मतलब क्या? एम्प्लॉय जो भी वर्क करता है वो अपने मन से करना चाहिए. ओके, उसको प्रॉपर मोटिवेशंस સર होना चाहिए. આપણે Yes. જે વર્ક કરે છે એનાથી આપણી જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એનામાં સેટિસ્ફેક્શન મળે એટલે જોબ સેટિસ્ફેક્શન. ઓકે, વેરી ગુડ. તમે લિંક કરી બે વસ્તુને, ઓન ધ જોબ ઓફ ધ જોબ वालों. ओके, चलो आगे जाते हैं. सिंपल वर्ड्स में बोले तो जॉब सेटिस्फेक्शन रिफर्स द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स द जॉब, कि बंदे का एटीट्यूड कैसा है जॉब के प्रति. दैट रिफर्स हिज जॉब. अगर जॉब के प्रति उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है देन इट्स कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है देन इट्स कॉल्ड जॉब डिससेटिस्फेक्शन. यहाँ पे मेरा पॉइंट ऐसा है कि अगर बंदा सेटिस्फाई होगा तो वर्क प्लेस पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, डिससेटिस्फाई होगा तो वर्क प्लेस पे बिहेवियर कैसा होगा. दोनों सिचुएशंस में बिहेवियर सेम होगा या सिचुएशन चेंज हो रही है बिहेवियर चेंज होगा? बिहेवियर चेंज होगा. चेंज होगा. यस, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट कि भाई चेंज बिहेवियर होगा. चेंज होगा. कि फॉर एग्जांपल, होगा. चलो सेम एग्जांपल हम आगे लेते हैं यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर एक सेल्समैन ने यहाँ पे 300 यूनिट सोल्ड किया और यहाँ पे वो बंदा एफिशिएंट था, उसने 600 सोल्ड कर दिया. बट कंपनी की पॉलिसीज क्या है कि सेल्समैन को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, तो क्या 15,000. तो 300 मोबाइल सोल्ड करने वाले को भी 15,000 मिला, 600 सोल्ड करने वालों को भी 15,000 मिला. तो एट द एंड ऑफ द डे हु विल बी सेटिस्फाइड और हु विल बी डिससेटिस्फाइड? 600 dissatisfied. एफिशिएंट, जो एफिशिएंट बंदा होगा वो क्या होगा? डिससेटिस्फाई होगा. कि भाई उसको क्या लगेगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ बट फिर भी मुझे उतनी ही सैलरी मिल रही है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, वो बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा? कम कर देगा. नाउ ही विल आल्सो नॉट ट्राई टू सेल मोर. जो भी टारगेट है उसका उतना ही काम करना है, ऐसी उसकी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, उसका बिहेवियर हो जाएगा. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई बंदा सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाई है और क्या रीजन है उसके पीछे, व्हाई ही इज डिससेटिस्फाइंग, व्हाट वी कैन डू सो दैट ही कैन बी मोटिवेटेड. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन. सेम एग्जांपल को आगे लेते हैं. नेक्स्ट इज टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर मींस प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, और कोई यहाँ पे टर्नओवर, ये पढ़ के बोलो क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट का पॉइंट नहीं है यहाँ पे. टर्नओवर एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना, मतलब कितने रेशियो में निकाल रहे हैं और ले रहे हैं. यस, यहाँ पे है एम्प्लॉयज टर्नओवर. ये क्या है? एम्प्लॉयज टर्नओवर. मतलब विद इन द स्पेसिफिक टाइम how many employees leave the organizations.
कि भाई एक स्पेसिफिक ईयर, फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर कितने लोग हमें छोड़ के चले गए, दैट रिफर्स योर टर्नओवर। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। अगर कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है उसका मतलब क्या, और टर्नओवर कम है उसका मतलब क्या? अगर कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है मतलब लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो लोग टिक नहीं रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और कोई? कंपनी स्टेबल नहीं है। ओके, और कोई? टर्नओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब क्या, कम हो रहा है उसका मतलब क्या? टर्नओवर ज्यादा है मतलब कंपनी में हायरिंग ज्यादा हो रही है पर निकाल कम बंदों को रहा है, और कम टर्नओवर होगा उसका मतलब है कि हायरिंग कम हो रही है। ओके, यू जस्ट रिलेट विद द रिक्रूटमेंट एंड टर्नओवर। ओके, और कोई? और कोई? एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन है इसीलिए वो नहीं निकल रहा है, और कंपनी भी निकाल नहीं रही इसीलिए टर्नओवर ज्यादा होगा। ओके, चलिए आगे जाते हैं। Here the my point is, at the workplace in our organizations, if we have a more turnover, then what will happen कि भाई एक साल के अंदर हमें बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि when someone is left you, at that time कंपनी को कोई कॉस्ट होगी फिर से। हाँ कोई होगी। एम्प्लॉयज हमें छोड़ के जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या कॉस्ट होगी, उसकी जगह पे कोई नए बंदे। यस, यस करेक्ट, कॉस्ट ज्यादा होगा। हाँ यस करेक्ट, कि भाई अभी क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ अभी क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे कोई नए बंदे को लाना पड़ेगा, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, वो सारी प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी। और वो बंदा आएगा उसके बाद वंस अगेन वी नीड टू गिव द ट्रेनिंग टू हिम और हर, एंड आफ्टर दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क। बट उस टाइम के लिए वो काम कैसा होगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इवन आवर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी सफर, कि अगर लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान होगा, कंपनी के अंदर कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एनालाइज कि भाई कंपनी के अंदर टर्नओवर है कि नहीं है। अगर टर्नओवर है तो कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, एंड व्हाट आर द मेन रीजंस। दूसरा पॉइंट क्या जानना पड़ेगा हमें, रीजंस, कि भाई कंपनी के अंदर क्यों हमें लोग छोड़ के जा रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस, कि भाई रीजंस क्या है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला रीजन आपको पता चला, फॉर एग्जांपल चलो कि जो एफिशिएंट बंदा था, एफिशिएंट सेल्समैन था, उसने अभी बोला कि भाई मुझे छोड़ के जाना है कंपनी को, मुझे कंपनी छोड़ के जाना है। तो आप एग्जिट इंटरव्यू लोगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि भाई क्यों हमें छोड़ के जा रहे हो। तो आपको यहाँ पे पता चला कि भाई एफिशिएंट बंदा जा रहा है, वो ज्यादा काम कर सकता है, कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ द सेम सैलरी नाउ ही इज डिससेटिस्फाइड एंड ही वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर ये एनालिसिस आप करोगे, ये आपको हेल्प करेगा, वो भी आपको उसको समझने के, मेंटल एबिलिटीज समझने में, मेंटल सिचुएशन समझने में हेल्प करेगा। तो उसके बेसिस पे आप क्या डिसीजन ले पाओगे इन दिस केस, कि भाई एफिशिएंट बंदा है वो हमें छोड़ के जा रहा है, तो व्हाट डिसीजंस विल बी ऑफ योर्स, क्या करेंगे हम सो दैट एफिशिएंट बंदा हमें छोड़ के ना जाए। थोड़ी मोटिवेशंस बढ़ा देंगे, सैलरी और प्रमोशंस कुछ करेंगे। ओके, और कोई? क्या उसकी क्या रिक्वायरमेंट जानेंगे। वन बाय वन बोलिए। उससे टाइम रेट की जगह पीस रेट में सैलरी देंगे। यस वेरी गुड, और कोई? उसकी रिक्वायरमेंट जानेंगे कि वो क्यों जाना चाहता है। ओके, आइडेंटिफाइंग द रीजंस, यस ओके, और कोई? मोटिवेशन करके। मोटिवेट करेंगे, इंसेंटिव्स इंक्रीज कर देंगे, वेरी गुड, और कुछ? अभी क्या करना है हमें,
एफिशिएंट बंदे का आपने इंटरव्यू लिया. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द रीजंस कि भाई वो बंदा हमें क्यों छोड़ के जा रहा है. So based on these reasons, based on the output of exit interviews, you need to discuss with your superiors, top bosses, and based on that, you need to improve your HR policies. हमें HR policies change करनी होगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा, so that कोई efficient बंदा हमें छोड़ के न जाए. These are the outcomes. कि भाई policies outcome ऐसे हो सकते हैं, आप सबने जो बोला वो, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा हम डाल सकते हैं कि जहाँ पे जो बंदा जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से वो बंदे को सैलरी या पैसा मिलेगा. तो वंस अगेन अगर वो बंदा ज्यादा सेल्स करता है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेंगे, बंदा कम सेल्स करता है तो कम पैसा मिलेगा. तो दिस इज पॉसिबल. तो इवन सेकंड कि भाई पहले कॉस्ट इंक्रीज होता है कि तो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्नओवर क्या है क्या नहीं. और दूसरा क्या हमने बोला कि भाई हमें समझना है कि भाई एफिशिएंट जा रहा है या इफेक्टिव जा रहा है, उसका रीजन क्या है, क्यों वो हमें छोड़ के जा रहा है. चलो अगर हम टर्नओवर का एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट मे बी द सिचुएशंस कि भाई जो इफेक्टिव लोग होंगे कंपनी के अंदर वो लोग बैठे रहेंगे, बट एफिशिएंट बंदे होंगे वो स्लोली ग्रेजुअली निकल जाएंगे. तो ultimately at the end of the day it will going to reduce your productivity at the workplace कि workplace पे हमारी productivity को वो चीज इफेक्ट करने वाली है. क्लियर? सो for that we need to understand कि टर्नओवर क्या है, कैसे हो रहा है, और इवन हम उसको कैसे रोक सकते हैं. क्लियर पॉइंट? सो even OB knowledge will help us in identifying and reducing the turnover at the workplace. चलो आगे जाते हैं. नेक्स्ट इज एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म का मतलब कोई काम पे ना आया हो. गैरहाजिरी. हाँ, पर केवी रीते what will be happen in the case of absenteeism? Productivity will reduce. Yes, वो सब उसकी इफेक्ट आएगी. तो यहाँ पे एब्सेंटिज्म सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एब्सेंटिज्म मीन्स पर्सन इज फेल टू रिपोर्ट एट द वर्क विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रायर नोटिस. मतलब वो बंदा कोई भी नोटिस दे के नहीं गया था, अगले दिन पे एक वीक पहले वो बोल के नहीं गया था, बट सडनली ऑन दैट पर्टिकुलर डे he or she do not come at the workplace. कि वो बंदा उस दिन पे वो काम पे नहीं आया, सडनली नहीं आया, बोल के नहीं गया था. अगर बोल के गया होता तो हम उसकी जगह पे कुछ और कर सकते थे, बट वो बोल के नहीं गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट सडनली वो बंदा वर्क प्लेस पे नहीं आया. दैट इज कॉल्ड एब्सेंटिज्म. तो एब्सेंटिज्म होगा तो उससे क्या होगा, अगर सडनली आपके यहाँ पे एब्सेंटिज्म एक दिन में हो गया तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी. यस, आंसर इज करेक्ट. कि अल्टीमेटली उसकी इफेक्ट कहाँ पे आने वाली है, व्हाट विल बी द प्राइमरी इफेक्ट? इफ एब्सेंटिज्म इज देयर डेफिनेटली इट गोइंग टू स्पॉइल योर प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर द मैनेजर इन अ वन पर्टिकुलर बैंक ब्रांच. एक बैंक ब्रांच के अंदर आप मैनेजर हो एंड यू हैव द 5-person स्टाफ. बैंक के अंदर 5 लोगों का स्टाफ आपके यहाँ पे है. Now assume that out of 5 suddenly on a one particular day 3 out of 5 do not come at the workplace. कि भाई 5 में से 3 बंदे आपको बिना बोले वो दिन पे एक साथ नहीं आए हैं, तो उस दिन पे आप बैंक का ब्रांच कैसे चलाओगे? चलेगा अच्छी तरह से इफेक्टिव वे? रेगुलर दिन में जो था और वो दिन पे था तो हमारी बैंक ब्रांच अच्छी तरह से चलेगी? आंसर इज नो सर. नो. आंसर इज नो. उस दिन पे क्या होगा? डेफिनेटली वर्कलोड बढ़ेगा. हाँ, वर्कलोड बढ़ेगा और अच्छी तरह से काम नहीं होगा. नॉर्मल दिन में जो एक पर्टिकुलर काम जो होता है वो 5 मिनट में हो जाता था, तो उस दिन पे वही काम मे बी टेकिंग प्लेस ऑफ हाफ आवर और इवन 1 आवर. कि भाई 5 मिनट का काम के लिए 1-1 घंटा
लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वंस अगेन ये जो कस्टमर्स होंगे बैंक के वो डिससेटिस्फाई होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मे बी पॉसिबल कि भाई सम कंप्लेन मे बी अराइज इन फ्रंट ऑफ बैंक मैनेजर, कि भाई कोई बैंक मैनेजर के सामने ही कंप्लेन कर दे कि भाई तुम्हारे यहाँ पे स्टाफ नहीं था और मेरा काम ये नहीं हुआ है, मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, मेरी पेमेंट रुक गई, समथिंग लाइक दैट। एंड एट द एंड ऑफ द डे इवन मैनेजर इज सपोज टू फेस द प्रॉब्लम कि भाई उसके यहाँ पे बंदे नहीं आए, बट अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ? पूरी ब्रांच को हुआ और इवन मैनेजर्स को पर्सनली भी हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि भाई वर्क प्लेस पे अगर बंदे नहीं आएंगे और सडनली नहीं आएंगे तो डेफिनेटली इज गोइंग टू स्पॉइल द प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनी में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी આપણે एज्यूम करके एट द प्रोडक्शन प्लांट कि भाई आपका कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फॉर एग्जांपल आप कार बनाते हो, तो कार बनाने के टाइम पे असेंबली लाइन है कि जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे कार जा रही है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार आर असेंबल्ड कि जुदी जुदा डिपार्टमेंट जुदा जुदा कारना पार्ट्स फिट करे છે, फॉर एग्जांपल। तो अभी क्या हो रहा है, सडनली टायर फिक्सिंग डिपार्टमेंट के जो 4 बंदे थे वो एक ही दिन पे नहीं आए और ऑन एन एवरेज एक दिन में हमारे यहाँ पे 100 कार्स बन रही है। तो अभी उस दिन पे वो 100 कार्स के 4 व्हील्स जो होंगे हर एक कार के, तो वो कौन असेंबल करेगा? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। उसकी जगह पे कोई नया बंदा लाएंगे तो वो इफेक्टिवली कर पाएगा, ऑन टाइम कर पाएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो कि भाई वो नए बंदे को वो चीज समझने में भी टाइम लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट उस दिन पे जो ऑन एन एवरेज पर आवर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन उसके हिसाब से नहीं होगा। एंड इवन मे बी पॉसिबल कि रेगुलर दिन में हम 100 कार्स असेंबल करते थे, बस उस दिन पे मे बी 70 और 80 कार्स में बी असेंबल्स, तो हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। चलो अभी पॉइंट मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, वो भी आपको कैसे हेल्प करेगा? अगर एब्सेंटिज्म है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? क्या कर सकते हैं हम? क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजीज होगी ओबी के अंदर आपकी सो दैट एब्सेंटिज्म कम हो? चलिए वो भी है। सर ये रूल होना चाहिए कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो नोटिस पहले देनी पड़ेगी, तो उससे एब्सेंटिज्म कम होगा। ओके वेरी गुड। आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स बनानी पड़ेगी। यस करेक्ट। और कुछ? और कुछ? और फिर भी कोई छुट्टी पे रहता है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा। वो बंदा ऐसा बोलेगा कि मेरा जेन्युइन रीजन है, मुझे जाना ही था, सडनली मेरी वहाँ पे कोई कुछ हुआ था, प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो उसका तो रीजन जेन्युइन हो सकता है, तो हम कैसे फाइन तो करेंगे उसको? एक्सेप्शंस होने चाहिए। क्यों कोई इमरजेंसी या मेडिकल रीजन हो तो वो होता है, लेकिन कोई ऐसे ही छुट्टी कर दे तो फिर ओके उससे सैलरी कट होगा या कुछ। तो वो फिर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा बंदे के पीछे, भाई वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। बिना नोटिस Yes. दिए हुए वाले को अनपेड लीव, हाँ उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। ओके ओके हाँ। यस। फिर और क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्कर होने चाहिए वैसे, यस ऐसी करेक्ट, वेरी गुड। सिचुएशन हो जाए तो। यस वेरी गुड कि भाई हमें लिटिल बिट एक्स्ट्रा स्टाफ रखना चाहिए, इमरजेंसी स्टाफ होना चाहिए हु कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम। यस करेक्ट। फिर और कोई? સર એબ્સન્ટિઝમ નું આપણે રીઝન એની પાછળ શું રીઝન છે જાણવાનું ટ્રાય કરો છો। यस वेरी गुड। तो हियर द पॉइंट इज, यही मैं सुनना चाहता था कि भाई वो एब्सेंटिज्म क्यों है, वो हमें ओबी के अंदर समझना पड़ेगा, वो भी हमें हेल्प करेगा कि भाई देयर मे बी द पॉसिबिलिटीज कि भाई वन पर्सन और फ्यू ऑफ द एम्प्लॉयज intentionally not coming at the workplace because they are dissatisfied or even they found some issues, power and politics problem कि भाई मैंने काम किया था बट फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने काम किया था बट फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, सो बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा डिससेटिस्फाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डू नॉट कम एट द वर्क प्लेस। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई वो एब्सेंटिज्म क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू टेक अ
डिसीजंस कि भाई वो बंदा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा बंदा रेगुलर नहीं आ रहा है. इवन वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई हाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको कि भाई ये हमारे यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोगों में से कौन सा बंदा रेगुलर आएगा कौन सा नहीं आएगा. क्लासरूम में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई ये हमारे एग्जाम हॉल के अंदर 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो ये 30 में से कौन सा लड़का हो सकता है कि जो चोरी करेगा, आजू बाजू देखेगा, ऐसा हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं. आंसर इज यस. यस. आंसर इज यस यस. कि भाई हम उसके बिहेवियर के ऊपर से वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई वो बंदा कैसा होगा, क्या करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट था एब्सेंटिज्म का कि भाई हमें वो भी हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग द रीजंस कि व्हाई द एब्सेंटिज्म इज देयर, व्हाट वी कैन डू सो दैट वी कैन रिड्यूस द एब्सेंटिज्म एंड व्हाट वी कैन डू इफ पीपल आर नॉट कमिंग एट द वर्क प्लेस. तो ये सारी चीजें हम एब्सेंटिज्म के अंदर करेंगे अगर हमारे पास ओबी का नॉलेज है तो. लास्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप. सिटीजनशिप એટલે ઇન્ડિયન સિટીઝનશીપ છે એવું, એવી કંપનીની સિટીઝનશીપ મળે. તો શું હશે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સિટીઝનશીપ એટલે? કંપની વાળા સિટીઝનશીપ આપશે અમને, ગ્રીન કાર્ડ આપશે કંપનીનું એવું? ના. તો શું હશે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સિટીઝનશીપમાં? परमानेंट कर सर. नहीं. Here the point is organizational citizenship feelings among the employees कि हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे जो वर्क प्लेस पे बहुत ही सेटिस्फाई है, एफिशिएंट है एंड दे लाइक टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे क्या आएगा, बंदे के अंदर अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसके अंदर ऐसी फीलिंग्स है કે યસ કે આ તો ભાઈ મારી કંપની છે, બરાબર, આ વ્યક્તિ કેવો બોલતો હશે એવી રીતે લાઈક ધેટ કે ભાઈ આ તો મારી કંપની છે, આ કંપની માટે મારે કામ કરવાનું જ છે, બરાબર. તો these are the words which he is speaking કે yes this is the company and this is my company and these are the people, they are my people, these are the assets of organizations but it is my. मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज का केयर करना है, मेरे सबऑर्डिनेट्स जो है उसकी केयर करनी है, मुझे कंपनी की केयर करनी है. तो ऐसी उसके अंदर जब फीलिंग्स होगी तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन पजेस द ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप फीलिंग्स. ऐसे जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, दे आर द मोस्ट लॉयल टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो कंपनी को हाईएस्ट लॉयल होंगे. अगर वो कोई और कंपनी है जो उसको डबल सैलरी भी देगी फिर भी वो बंदा हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा. He is highly loyal towards our organizations, maybe because of various reasons. कि भाई उसका डिफरेंट रीजंस हो सकता है, उसके कारण क्या है, बंदा हाईली सेटिस्फाई है और वो बंदा अपनी हमारी कंपनी के अंदर रहना चाहता है, कमिटेड है, हाईली कमिटेड है और वो सब ध्यान रखेगा. तो पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि भाई ओबी के अंदर अगर हमारे पास ओबी का नॉलेज होगा देन वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स अमॉन्ग आवर एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस कि भाई कंपनी के अंदर हम ये फीलिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं. ये कब होगा, when our employees are highly satisfied and they must feel कि भाई each and every employees are taken केयर बाय द बॉस, कि भाई उसको लगेगा कि यस सब लोग मेरे ध्यान रख रहे हैं, कंपनी में सब अच्छा चल रहा है, उसको जो भी उसका काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है एंड द फीलिंग विल बी आई लव माय कंपनी, ये मेरी कंपनी है, इसकी फीलिंग उसके अंदर में आएगी. क्लियर? तो दिस विल बी द फीलिंग्स व्हिच वी वांट टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. क्लियर? सो नाउ वी हैव 2 more minutes. So first of all, let me just recall or recap what we just do up to now. So friends, today we just start up with the unit number 1 और अभी ये सब आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो हम सिंपली डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए. उसके अंदर हमने स्टार्ट किया बिहेवियर क्या होता है, तो बिहेवियर के बारे में हमने बोला बिहेवियर मीन्स हाउ यू एक्ट और रिएक्ट इन अ गिवन situations that refers your
बिहेवियर। तो बंदे का कोई भी एक बंदा है, इवन सिचुएशंस इज गोइंग टू बी चेंज आउट, द बिहेवियर इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज आउट। तो आपको एग्जांपल याद रखना है कि बीइंग वन एम्प्लॉय एट द होम, हिज बिहेवियर माइट बी डिफरेंट, in front of boss his behavior might be different, as a student in your classroom your behavior will be quite different, at your home your behavior will be different, same way at house, same way at public place your behavior will be different. Then we discuss why we need to study organizational behavior, कि भाई हमें वो भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसके अंदर हमने देखा फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम ओबी को पढ़ेंगे तो वी विल ट्राई टू और वी कैन एबल टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि भाई कंपनी के अंदर कोई बंदा है वो कितना ह्यूमन आवर्स दे रहा है और उसके कंपैरिजन में उसका कितना आउटपुट है, दैट रिफर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो एट द वर्क प्लेस वी नीड टू सी वेदर वी हैव अ इफेक्टिव पर्सन or efficient persons. We want efficient persons at our place. Next is job satisfaction. So job satisfaction refers the attitude of the employee towards the job, either favorable or unfavorable. Once again, अगर बंदा satisfy होगा तो उसका behavior अलग होगा, dissatisfy है तो उसका behavior अलग होगा। कि for example कॉलेज के admin staff, कि एडमिन स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड सैलरी, तो वो बच्चों के साथ अच्छी तरह से बात करेगा, ऑन टाइम आएगा। बट उसकी सैलरी नहीं है, उसको ज्यादा आवर्स में काम करना पड़ता है बट सैलरी नहीं मिलती है, देन इट मे बी पॉसिबल कि वो एडमिन वाला बंदा डिससेटिस्फाई होगा। तो उसके कारण क्या करेगा, वो ऑन टाइम नहीं आएगा और लोगों से अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा। तो दिस मे बी पॉसिबल। तो दिस इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन की इम्पैक्ट बिहेवियर के ऊपर आती है, वो हमें समझना है, वो भी हमें हेल्प करेगा कि उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। उसके बाद हमने देखा टर्नओवर, कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई कितने बंदे हमें छोड़ के चले गए, तो वो क्या दिखाता है, टर्नओवर दिखाता है। तो कंपनी के अंदर हमें समझना है कि भाई हमें लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कैसे टाइप के लोग छोड़ के जा रहे हैं और हम वो कैसे कम कर सकते हैं, कौन सा बंदा छोड़ के जा रहा है, बिकॉज इट्स गोइंग टू क्रिएट द कॉस्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस एंड वी नीड टू टेक अ वेरियस डिसीजंस। देन एब्सेंटिज्म, a person is failed to come at the workplace without making any kind of prior notice, तो एब्सेंटिज्म इंक्रीज होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली स्पॉइल होगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई एब्सेंटिज्म क्यों है और क्या करेंगे सो दैट वी कैन एबल टू रिड्यूस द एब्सेंटिज्म। एंड लास्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप्स, कि भाई हमें हमारे एम्प्लॉयज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप की फीलिंग्स जनरेट करनी है, जिससे बंदा हाईली सेटिस्फाई होगा, highly committed होगा and he will be doing more work at the workplace and he will not leave us even for the whole life of his career. So this is about why we need to study organizational behavior. चलो briefly ये भी देख लेते हैं, last 1 minute है। So organizational behavior will provide the set of tools, कि भाई अगर हमारे पास OB का knowledge होगा तो OB हमें various tools देगा for the purpose of understanding the people, analyze them and describe their behavior in the organizations, कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन कैसा है उसको हम समझ पाएंगे और इवन उसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि भाई जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वो इस तरीके से क्यों कंपनी के अंदर बिहेव कर रहा है। सो वी विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवन डिस्क्राइबिंग और इवन प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ आवर एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस। Even managers, they can also improve, enhance or even change the work behavior so that the individuals, group and whole organizations can achieve their goals, कि भाई being manager के रूप में वो बंदा अपना भी behavior change करेगा so that ultimately company का goal attain होगा। ये हम डिटेल में कल फिर से देखेंगे। Clear? Points which we discuss in our today's lecture, that is lecture number 1. So herewith I just ending recording and